Next question is, if P is the smallest prime factor of the order of a finite group G, prove that any subgroup of index P is normal in G. Before doing this, we should know about the index of a group. What is the statement said? If P is the smallest prime factor of the order of a finite group G, then prove that subgroup of index P is a normal subgroup. Suppose, like example, order of G is 30. 30, 2 into 3 into 5. This is the prime factorization of 30. So 2, 3 and 5, these are the prime factors of order of G. And we can see that 2 is smallest prime factor of order of G. Similarly, here in generalized way, the statement said that if P is the smallest prime factor of the order of finite group, then prove that subgroup of index P is normal in G. Let H be a subgroup of G such that index of H in G is P. So we have to prove that this subgroup is normal subgroup. Firstly, we claim that if X doesn't belongs to H, then X raised to power I doesn't belongs to H for all I 1, 2 up to so on P minus 1. हमें क्या प्रूव करना है कि अगर X एक एलिमेंट है जो H में नहीं जा रहा, तो उसकी कोई पावर करेंगे 1, 2, 3 up to so on P minus 1, वो भी H में नहीं जाएगी. कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम सपोज कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल X रेज टू पावर K बिलोंग्स टू H फॉर सम K लाइंग बिटवीन 1 टू P माइनस 1, कि 1 से लेके P माइनस 1 के बीच में कोई ऐसी पावर आ गई है जो H में जा रही है. लेट J बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट X रेज टू पावर J जो है H में जा रहा है. कह रहा है J सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये H में जा रहा है. लेट ऑर्डर ऑफ X क्या है, M है, एंड ऑर्डर ऑफ G क्या है, N है. सो M डिवाइड्स N. Why? Because G is a group and X is the element of G. So by corollary of Lagrange theorem, order of element should divide order of group. So by here M divide N. Because जो J है it lies between 1 to P and P is the least prime factor of N, then J doesn't divide M. J कभी भी M को divide नहीं करेगा. क्यों? See reason here. If G divide M and M divide N, then J divide N, which is not true because J is less than P and P is also less than N. Then how J can divide N? ठीक है. So here we get J doesn't divide M. Next, M by division algorithm we can write M is equals to JQ plus R, where R lying between 0 to J. Order of X is M. It means order of X is M. It means X raised to power M is equals to E. Put the value of M from here. JQ plus R is equals to E. X raised to power J Q R is equals to E. So we get X raised to the power R. X raised to the power R is belongs to H. ठीक है, which is a contradiction because here R is less than J and we suppose that X raised to power J is smallest. J is smallest number for which X raised to power J belongs to H. जो J है वो सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए X रेज टू पावर J जो है वो H में जा रहा है, बट यहाँ तो R जो है J से भी छोटा आ गया एंड X रेज टू पावर R है जो वो H में जा रहा है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. सो आवर क्लेम इज एस्टेब्लिश्ड. हेंस जो हमने क्लेम किया था वो हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट वी शैल प्रूव दैट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. इफ पॉसिबल लेट H बी नॉट नॉर्मल सब ग्रुप इन G. फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगा रहे हैं, कॉन्ट्ररी सपोज कर रहे हैं कि H नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है G का. देन देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H.
such that x inverse hx doesn't belongs to H. This is the necessary and sufficient condition for a subgroup to be a normal subgroup, that x inverse hx शुड बिलोंग्स टू H. अगर H नॉर्मल होता तो ये वाली कंडीशन होल्ड करनी थी कि ये वाला जो एलिमेंट है H में जाएगा, बट ये नॉर्मल नहीं है तो ऐसा कोई एलिमेंट मिल ही जाएगा सच दैट ये वाली चीज हो जाएगी. अगर x इनवर्स H से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब x भी जो है वो H में नहीं जा रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो hx डजंट बिलोंग्स टू hx ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से x डजंट बिलोंग्स टू h. तो अभी अभी हमने जो पीछे रिजल्ट प्रूव किया इसी थ्योरम के स्टार्टिंग में, अगर x नहीं जा रहा h में तो x की कोई पावर लेंगे जो 1 से लेके p-1 के बीच में होगी, वो भी नहीं जाएगी h में, बाय लेम्मा. जो अभी हमने किया उसको लेम्मा बना के इंक्लूड कर देना. वी क्लेम दैट hx स्क्वायर hx p-1 is the totality of the distinct right cosets of H in G. टोटैलिटी का मतलब ये सारे जो हैं टोटल G के सारे यही कोसेट्स बनाएंगे. इफ पॉसिबल लेट, टोटैलिटी का मतलब सिर्फ यही कोसेट होंगे G के, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, क्योंकि H का G में इंडेक्स P है. इसका मतलब उसके P इंडेक्स है, तो इसका मतलब क्या है, H के अंडर H के जो कोसेट होंगे उनका नंबर कितना होगा, P होगा. तो ये भी तो P बन रहे हैं 1 0 1 2 टू सोन p-1, 0 से लेके p-1 तक, मतलब P बन रहे हैं टोटल. तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट है सारे, मतलब इक्वल नहीं है कोई भी दो. हम सपोज कर लेते हैं कोई दो क्या है, इक्वल है. hxi इज इक्वल्स टू hxj फॉर सम i and j lying between 1 to p-1. अगर hx इज इक्वल्स टू hy होता है तो फिर से वही प्रॉपर्टी ha इज इक्वल्स टू hb इफ एंड ओनली इफ a b इनवर्स बिलोंग्स टू h. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट. यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओ, xi इंटू xj इनवर्स बिलोंग्स टू h. बेस सेम पावर्स को ऐड कर दो, xi माइनस j बिलोंग्स टू h, विच इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वन इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में कही थी कि j जो है वो सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए x रेज टू पावर j जो है h में जा रहा है, बट यहाँ तो i माइनस j विच इज लेस देन j. जो i माइनस j होगा वो j से छोटा ही होगा, और x रेज टू पावर i माइनस j जो है वो h में जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली एज y इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये तो प्रूव हो गया जो हम लेके चल रहे थे कि दो कोसेट को हम इक्वल लेके चल रहे थे इनमें से, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. इसका मतलब ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू x इनवर्स hx डजंट बिलोंग्स टू h. ठीक है, देयरफॉर hy टू सोन hy रेज टू पावर p-1 इज टोटलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ h in G. सेट्स h hx these are equal. ठीक है, तो hx को hy रेज टू पावर समथिंग लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे. तो यहाँ पर hx है उसको hy की कोई पावर लिख सकती हूँ, वेयर जो पावर होगी वो 1 से लेके p-1 में होगी. फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ इसके ऊपर, ha इज इक्वल्स टू hb इम्प्लाइज ab इनवर्स बिलोंग्स टू h. तो यहाँ से xy रेज टू पावर माइनस r बिलोंग्स टू h. अगर ये h में जा रहा है तो h के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, से h डैश इज द एलिमेंट जिसके कि ये इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये आ गई. तो x h डैश y रेज टू पावर r की एलिमेंट वैल्यू पुट करो, यहाँ से पुट करके x इनवर्स h r x, दिस इज E इज इक्वल्स टू h x इनवर्स. क्या करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स. पीछे से x इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स दोनों तरफ. तो यहाँ पर x इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा,
एच डैश एक्स इनवर्स एच आर, और ये भी एक्स इंटू एक्स इनवर्स होके आइडेंटिटी बन जाएगा। तो यहाँ से एच डैश एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच माइनस आर। तो यहाँ से फिर से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एच आर एच डैश। एच और एच आर दोनों एच में जा रहे हैं एंड एच इज अ सब ग्रुप, तो उनका प्रोडक्ट भी एच में जाएगा। तो यहाँ से आ गया एक्स बिलोंग्स टू एच। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू हियर। यहाँ हम कह रहे थे कि एक्स नहीं जा रहा है एच में, बट यहाँ लास्ट में क्या आ गया, एक्स जो है एच को बिलोंग कर रहा है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो जो हम लेके चल रहे थे वो गलत है। एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हैंस प्रूव।